My dear students, today we will be discussing laws of photochemistry, where we will discuss Groth-Draper law and Stark-Einstein law. हम quantum yield के बारे में भी बात करेंगे. I'll try and explain quantum yield also. And during this lecture, I'll be using Hindi, Urdu as well as English. Now, सबसे पहले laws of photochemistry में we will be discussing Groth-Draper law. So first the statement. According to this, first this law was put forward by J.D.T. von Grotthuss in 1818 and was confirmed by John W. Draper in 1839. So what does this law state? ये law कहता क्या है? This law states that a photochemical change, photochemical reaction such as photosynthesis or photophysical process like fluorescence and phosphorescence to occur, the system must absorb the light first. यानी कि किसी भी photochemical change के होने के लिए, for any photochemical reaction, to occur, what should happen? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सिस्टम को? It must absorb light. So the absorption of light is the prerequisite for a photochemical reaction to occur. अब इस चीज को, इस photochemical reaction को थोड़ा सा क्वालिफाई किया गया है. This photochemical reaction change, जो photochemical change है, it may be a photochemical reaction, यानी कि ये chemical reaction हो सकती है, or it may be a photophysical process. So what is the difference between this photochemical reaction and a photophysical process? Photochemical reaction में क्या होता है? When the reactant molecule absorbs this photon, इसने photon absorb किया, ये ground state से activated state में चला गया, then what will happen? ये change हो जाएगा product में. ठीक? On the contrary, ये हमारी photochemical process हो गई. On the contrary, जो हमारा photophysical system है, इस चीज को आप ख्याल रखिएगा. जो हमारा photophysical process है, इसमें क्या होता है? photophysical process में अगेन यही सिस्टम है. इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, फोटोन एब्जॉर्ब के बाद ये एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया, बट ये एक्टिवेटेड स्टेट से किसी प्रोडक्ट में नहीं चला जाएगा, रादर ये वापस ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा एंड इट विल रिलीज द एनर्जी. लेकिन ये बात आपको खास ख्याल रखनी है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर नहीं है, इसलिए हम इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को न्यू डैश से दिखाते हैं. रीजन बीइंग कि ये जो यहाँ पे आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये बहुत सारे काम करती हैं और इसमें से कुछ एनर्जी ऑलरेडी कंज्यूम हुई होती है जब ये एक्टिवेटेड स्टेट बनाती है, जिसकी वजह से जब आपने ये एनर्जी इस फोटोफिजिकल के बाद आपके पास रिलीज हो गई, इट इज नॉट इक्वल टू बट लेसर देन दिस एनर्जी. ओके, फाइन. नाउ लेट मी इरेज दिस आउट. आई होप कि आपको ये समझ आ गया फोटो फिजिकल और फोटो इस केमिकल के चेंज के बारे में. यू हैव अंडरस्टूड इट. ये मुश्किल नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. सो जो ग्रॉथ-ड्रेपर लॉ है, इसके according to this law, for a photochemical change, चाहे ये photochemical reaction हो, चाहे ये change photochemical reaction हो, चाहे ये photophysical process हो, तो इसको होने के लिए the system must absorb the light first. This is our photochemical reaction, right? इसमें ये पहले activated state बन गया और एक्टिवेटेड स्टेट से इसने प्रोडक्ट बनाया, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड. और उसके बाद क्या है? फोटोफिजिकल प्रोसेस में क्या है? आपका जो फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, एक्टिवेटेड स्टेट बन गया, लेकिन इससे वापस ये ग्राउंड स्टेट में चला गया, इसने कुछ एनर्जी लूज की,
तो ये न्यू डैश और न्यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर नहीं होती है. सो दिस इज आवर Grotthuss-Draper law. So when light is incident on a body, a part of it is reflected, a part is transmitted, and the rest is absorbed. As explained, it is only the absorbed light which is effective in bringing about a photochemical change. Again, light का absorb होना prerequisite है for a photochemical change to take place, whether that photochemical change is a chemical reaction or it is a photophysical process. कभी कभार क्या होता है, जो reacting system होता है, it doesn't absorb light. So sometimes this reacting system does not absorb the energy directly. Although it doesn't absorb the energy directly, it does so indirectly. ये किसी और एंटिटी, किसी और मॉलिक्यूल के थ्रू ये एब्जॉर्ब करता है. कोई और मॉलिक्यूल पहले एब्जॉर्ब करता है और फिर इस सिस्टम को ये पास करता है. ऐसा सब्सटेंस जो ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये सिस्टम को देता है, जो सिस्टम फिर रिएक्ट करता है, ऐसे एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट photosensitizer. Sometimes other substance absorbs the energy and passes it to the reacting system, which then begins to react. Although it may not absorb the energy directly, it does so through some other substance. लेकिन absorb करना तो जरूरी है. Unless and until it absorbs the energy, तब तक लाइट एनर्जी जब तक नहीं एब्जॉर्ब करे तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती है. इस फिनोमिनन को हम कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन और इस सब्सटेंस को कहते हैं हम फोटोसेंसिटाइजर. तो अब हमारे पास जो दूसरा लॉ है, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड दैट इज आवर स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ. तो स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ का सबसे पहले देखेंगे. इट वाज इज नेम्ड आफ्टर जोहान्स स्टार्क एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, हु इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेटेड द लॉ between 1908 and 1913. So what is the statement of the law? ये law कहता क्या है? According to this law, for each photon of light absorbed by a chemical system, only one molecule is activated for subsequent reaction. It is thus also known as photochemical equivalence law or photoequivalence law. इसका मतलब ये कि जो हमारा रिएक्टिंग सिस्टम है उसमें हर एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब अ सिंगल फोटोन. एक सिंगल फोटोन एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा. यानी कि जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन द सिस्टम और जो फोटॉन्स है दे विल बी इन द 1:1 रेशियो. ये 1:1 रेशियो में है. जितने मॉलिक्यूल्स है उतने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे. इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है? यू कॉल दिस लॉ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ और फोटो इक्विवेलेंस लॉ, फॉर द रीजन कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स being absorbed, they are in the ratio 1:1. यहां आप लोग ये गौर कीजिए, just try to learn carefully, try to listen to it carefully. I am saying number of molecules present and not the number of molecules that react. Present, not react. तो इसके लिए मैं इसको हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, बट इसके लिए मैं यहां आपको बता दूं कि not every photon that is being absorbed by a molecule converts the molecule into a product. जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा फोटोन है किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी, एक खास एनर्जी चाहिए. अगर वो एनर्जी उतनी नहीं है तो although this molecule will absorb the photon but it won't be activated. So I am using the term कि जो हमारा सिस्टम है जितने इसमें these molecules प्रेजेंट है, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उतने ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द टर्म रिएक्टेड. इस लॉ को हम क्या कहते हैं? इस लॉ को हम एक और नाम भी देते हैं, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ और फोटो इक्विवेलेंस लॉ. सो फ्रॉम this law it is inferred that every mole of a substance that reacts an equivalent quanta of light are absorbed. ठीक है? Rather we can say that's present. This implies that 1 mole of photon is absorbed for every mole of a substance. 1 mole of photon is absorbed for every
मोल ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? मॉलिक्यूल कितने फोटोन? इट विल एब्जॉर्ब 1 फोटोन। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, ये कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे? 2 फोटॉन्स। अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल्स है, ये कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे? n फोटॉन्स। अगर हमारे पास Na यानी कि एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे? ये करेंगे एब्जॉर्ब एवोगैड्रोज नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मोल्स को हम कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट 1 मोल। और ये एवोगैड्रोज नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट 1 आइंस्टाइन। आई होप इट इज क्लियर। सो एक मॉलिक्यूल जो हमारा है, 1 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स 1 फोटोन, n molecules absorb n photons, and Avogadro number of molecules, Avogadro number of molecules क्या होता है? 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules, जो कि 1 mole of a substance होता है. How many photons will they absorb? They will absorb Avogadro's number of photons, that is 6.023 into 10 raised to the power 23 photons, यानी कि वो कितने हो गया? 1 mole of photons. उसको हम कहते हैं एक आइंस्टाइन. I hope it's clear. यानी कि E will be the energy absorbed by 1 mole of a substance, यानी कि N is the Avogadro's number, H nu हो गया 1 photon. तो इतने photons एक mole absorb करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? The amount of energy absorbed by 1 mole of molecules is referred to as 1 Einstein. Okay, the amount of energy absorbed by n moles of a molecule or reactant, let it be ET total. अगर हमारे पास n moles है तो ये कितने Einstein absorb करेंगे? n into E. Let us say number of Einsteins absorbed by n moles is equal to ET. This will be the total energy absorbed by system. एक system है जिसमें n moles है, तो एक मोल E यानी कि 1 Einstein absorb करेगा, n moles n into E यानी कि n E Einsteins of mole जो है ये absorb करेंगे. Now अगर इस फॉर्मूले से, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम. कैसे? सिंपली डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स डिवाइडेड बाय E यानी कि 1 आइंस्टाइन, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स या 1 आइंस्टाइन. सो दिस इज इक्वल टू ET डिवाइडेड बाय E. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइंस्टाइन्स डिवाइडेड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल. इन केस यू फाइंड अ न्यूमेरिकल, यू आर आस्क्ड न्यूमेरिकल जहां आपको टोटल एनर्जी दी गई है और ये भी कहा गया है कि आपके पास आइंस्टाइन तो आपको पता ही है, तो you can divide the two and you can find the number of moles present in the system, right? तो ET तो आपको पता ही, it is the total energy. This E, this Einstein, ये जो आपका आइंस्टाइन है, this Einstein, you know ये किसके बराबर है? ये बराबर है Avogadro's number into H nu. ठीक है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Avogadro's number into एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, वही हो गई ना, एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी है आइंस्टाइन. इसको हम लिख सकते हैं Na into Hc by lambda. That is what has been done. ये जो इस E की जगह we have substituted this value. हमने नीचे ये लिखा है, E total को लिखा है as it is, E total ऐसे, और इस E की जगह लिखा है हमने Na H न्यू को चेंज किया गया C by lambda में. और ये जो हमारी इक्वेशन है, इससे भी हमें मिल सकता है क्या? वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ए सिस्टम. ये हमें आगे भी चाहिए होगी ये इक्वेशन क्वांटम यील्ड में. सो यू विल जस्ट पे अटेंशन टू दिस इक्वेशन, राइट? सो चलिए, लेट अस इरेज इट फर्स्ट, राइट? ओके, फाइन, ओके जी. This is done. Now ये simply
हमने सिंप्लीफाई किया है इस इक्वेशन को, वी हैवंट डन एनीथिंग स्पेशल। इस लैम्डा को हम ऊपर लेकर के आ गए हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इज इक्वल टू ET इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय NaHC बाय लैम्डा। ये कहाँ से आ गए, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, इसको हम वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन इन आवर क्वांटम यील्ड, राइट। नाउ दिस लॉ अप्लाइज टू द एब्जॉर्प्शन और द लाइट induced part of a reaction that is referred to as primary process। ये जो हमारा लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ कि एक हमारा मॉलिक्यूल जो है एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ये हमारा सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस के लिए यूज होगा जहां पे मॉलिक्यूल हमारा फोटोन एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट हो जाता है। फिर एक्टिवेट होकर के वो किन रिएक्शंस में, किन सेकेंडरी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, in most photochemical reactions, the primary process is usually followed by secondary photochemical process that do not require the absorption of light and or normal interactions between reactants. As such, the secondary photochemical reactions do not appear to obey the one molecule reactant species। जो हमारी secondary processes है तो जिसमें हमारी light involve नहीं होती है, sometimes free radicals, sometimes other species are involved, और जिसमें simply फिर reactants react कर करके normally products बनाते हैं, उसमें इसका कोई रोल नहीं है इस लाइट एब्जॉर्प्शन का। सो जब लाइट एब्जॉर्प्शन का रोल नहीं है तो हमारे स्टार्क आइंस्टाइन लॉ का भी कोई रोल उसमें नहीं है। This law is restricted to conventional photochemical processes using light sources with moderate intensities। ये जो हमारा वन फोटोन वन मॉलिक्यूल वाला रूल है, ये सिर्फ कन्वेंशनल फोटोकेमिकल प्रोसेस में यूज होता है जहां पे मॉडरेट इंटेंसिटीज यूज होती है। जहां हम हाई इंटेंसिटीज यूज करें तो वहां पे बाई फोटोनिक प्रोसेसेस भी हो जाती हैं, जैसे हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्सेज सच एज दोज यूज्ड इन फ्लैश फोटोलिसिस एंड लेजर एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट इन बाई फोटोनिक प्रोसेसेस। उसका क्या मतलब, द एब्जॉर्प्शन ऑफ 2 photons ऑफ लाइट बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। सो फॉर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ टू होल्ड हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शुड हैव कन्वेंशनल फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी वाले सोर्स यूज हो जाएंगे, न कि हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्सेज जैसे कि फ्लैश फोटोलिसिस में यूज हो जाते हैं। At that point of time, by photonic processes may result that may involve the absorption of 2 photons of light by a molecule of a substance. Now हम एक बहुत ही interesting और बहुत ही important चीज पढ़ने जा रहे हैं, that's our quantum efficiency. So what is the quantum efficiency? Quantum efficiency is the quantitative relationship between the number of moles reacted. What is the number of moles reacted? Is the rate at which the products are formed and the number of moles of photons absorbed. यानी कि quantum efficiency is nothing but the relationship कि कितने photons absorb हुए और कितने moles react किए, कितने moles react किए और कितने photons absorb हुए, ठीक है। कितने मोल्स रिएक्ट किए इसको हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, और कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए। ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस जिस हिसाब से किया जाता है उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट क्वांटम एफिशिएंसी। सो कैसे दिखाते हैं इसको, तो फाइ से डिनोट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। इसको हम दिखा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड की जगह अगर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, अगर ऊपर मोल्स आ जाएगा तो नीचे आइंस्टाइन्स आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे जो फोटॉन्स है वो भी मोल्स में ही आ जाएंगे जिसको कि हम आइंस्टाइन कहते हैं। सो वी मे ऑल्सो राइट इट डाउन एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड, मॉलिक्यूल्स की जगह मोल्स, एंड टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटा और फोटॉन्स एब्जॉर्ब की जगह टोटल नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। So what is the total number of moles reacted? It is nothing but the rate of the reaction change in the concentration of the reactant, that is rate of the reaction, and total number of Einsteins absorbed. It may also be represented as total number of moles reacted divided by total number of moles present. हम इस वाली रिएक्शन को जो हमारी लास्ट वन है इस वाली एक्सप्रेशन को we'll use it to find out the formula फॉर दिस क्वांटम यील्ड। इस चीज को हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम वी विल बी यूजिंग इट, हम इसको यूज करेंगे एंड वी विल जस्ट
find out, we'll just find out the formula, we'll just try and calculate कि हम formula क्या होगा quantum yield के लिए, जिस formula को हम use कर सकते हैं numericals के लिए, that we are asked in our these competitive examinations. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, ये हमारा 5 होता है. चलिए, so how to calculate quantum yield? Total number of moles reacted divided by total number of moles present. Total number of moles reacted को हम NR से रिप्रेजेंट करेंगे, और total number of moles present मैंने आपको पहले ही दिखा दिया इस लेक्चर के शुरुआत में ही कि हम इसको डिटरमाइन करते हैं by this formula. This is the total energy absorbed, ET. अगर हमारे पास जितने भी मोल्स हैं उनकी एनर्जी ET है. लैम्डा Na हो गया एवोगैड्रो नंबर, H हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NR, इन सब चीजों को Na, H एंड C ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ET लैम्डा. कुछ नहीं, हमने इस डिनोमिनेटर को या इसको इनटू किया है इसके रेसिप्रोकल से, तो ये आ गया. तो बट वी नो जो हमारा NaH इंटू C है, दिस NaH इंटू C, जस्ट ए मोमेंट, जो हमारा NaH इंटू C है, Na की भी पर्टिकुलर पता है वैल्यू, एवोगैड्रोस नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट की भी पता है वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट की भी पता है वैल्यू. इन सब की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड, हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एक्सक्यूज मी, हाँ, जो हमारा जो फॉर्मूला है फाइनली ये इस फॉर्म में आ जाता है. फाई इज इक्वल टू NR, यहाँ गलती से कैपिटल हो गया है, नो वरीज, इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई ET लैम्डा. सो ये फॉर्मूला जो है ये आप याद रखेंगे जब आपको क्वांटम यील्ड के लिए क्या करना होगा, व्हेन यू आर सपोज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. यानी कि अगर आपको टोटल आइंस्टाइन दिया गया है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, लैम्डा दिया गया है, यू कैन just use this formula and find out the quantum yield. And quantum yield is really an important topic जिससे अक्सर बेशतर हमें सवाल पूछे जाते हैं. We are asked numericals related to this particular topic, right? So हमने क्या कहा, हमने कहा कि वन स्टार्क आइंस्टाइन लॉ के टाइम में हमने कहा 1 फोटोन 1 मॉलिक्यूल रूल, या एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर फोटोन अट्रैक्ट ये हो जाता है, क्या कहते हैं जी इसको, रिएक्ट करता है. तो बट ये जो चीज़ है इट डजंट होल्ड समटाइम्स, जिसकी वजह से हमारा जो क्वांटम यील्ड है 1 नहीं होता. क्योंकि अगर ये चीज़ होती कि फॉर एवरी, जस्ट अ मिनट, I'll go back. अगर फॉर एवरी मोल रिएक्टेड, एक मोल के लिए एक आइंस्टाइन या 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल फोटॉन्स यूज होते, तो इसका मतलब होता हमारा जो फाई है या क्वांटम यील्ड हमारा जो है इट वुड हैव बीन 1, ये 1 होना चाहिए. तो एज पर द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो वी कम अक्रॉस मैनी केसेस, इसमें हमें बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं. तो जैसे कि लिखा गया, एज पर स्टॉक आइंस्टाइन लॉ फाई मस्ट बी इक्वल टू 1 एज फोटोन कैन एक्टिवेट ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज पर द लॉ. मगर क्या होता है, हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं. समटाइम्स दिस क्वांटम यील्ड, दिस फाई इज क्वाइट हाई. ठीक है, हमारा जो क्वांटम यील्ड है ये फाई, ये 1 से बहुत ज्यादा होता है. इनको कहते हैं हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस. ठीक है, हाई क्वांटम यील्ड रिएक्शंस कहते हैं उनको. समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ये 1 जो फाई जो है ये बहुत कम होता है 1 के मुकाबले, इसको हम कहते हैं लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस होती हैं ये. और समटाइम्स इसका वैल्यू जो होता है, इस फाई का वैल्यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, यानी कि इंटीग्रल वैल्यूज इसके कुछ होते हैं. ठीक है, सही. सो वी कम अक्रॉस डिफरेंट केसेस. इन केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों होता है. लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाई डज दिस हैपन. सो क्वांटम एफिशिएंसी इक्वल टू 1, 2 और 3 when very few moles of the reactant molecules react for every mole of the photons absorbed. Such reactions where the quantum yield is equal to 1, 2 or 3 are referred as small integral quantum yield reactions. ऐसे quantum yield वाली reactions को हम क्या कहते हैं, we call it small integral quantum yield reactions. ठीक है, so ये जो हमारा 1,
2 3, 1 को तो हमने स्टार्क आइंस्टाइन लॉ कहता है, ये 2 3 या कम क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे इन द 2 केसेस जहां पे हम ये कहते हैं कि क्वांटम यील्ड इज हाई एंड क्वांटम यील्ड इज लो, उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये रिएक्शन है H2 plus I2 gives twice H है, इसमें phi जो है 2 के बराबर है। Now quantum efficiency is quite high sometimes, ठीक है, यानी कि for every mole of photons, what is the energy of 1 mole of photons equal to 1 Einstein absorbed a large number of moles of reactant molecules react. Such reactions are referred to as high quantum yield reactions. कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको कहा ये जो phi है एज पर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ये 1 होना चाहिए, यानी कि फॉर एवरी फोटोन एब्जॉर्ब्ड 1 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट शुड रिएक्ट या 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड, मगर ये कभी कभार क्या होता है ये बहुत हाई होता है, ठीक है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे हमारी ये रिएक्शन है, हम इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, तो ये मोस्टली फ्री रेडिकल रिएक्शंस में होता है। तो इसका क्या रिएक्शन, इसकी क्या वजह हो जाती है, इसकी वजह ये हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और इसने हमें फ्री रेडिकल्स बन गए इसमें, ठीक है जी। तो ये जो फ्री रेडिकल है हमारा, दिस फ्री रेडिकल, ये बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके, ये बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे ये हमारे पास H2 है, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये एक तो प्रोडक्ट बनाता ही बनाता है एंड इट जनरेट्स मोर फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स इसको प्रोपागेट करते रहते हैं, इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन को प्रोपागेट करते रहते हैं। यानी कि इस चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद जहां ये फ्री रेडिकल बन गया, इस फ्री रेडिकल ने बहुत सारे और प्रोडक्ट्स के साथ साथ फ्री रेडिकल्स बनाए, और ये फ्री रेडिकल्स जो है बाकी मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं और इनको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि वी डोंट नीड मोर लाइट, हमने एक लाइट में जो हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है एक फोटोन में, हमारा जो फ्री रेडिकल है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाता है, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो फॉर दिस रीजन इसका जो क्वांटम यील्ड है ये 10⁴ to 10⁶ है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हाउ क्वांटम यील्ड में बी हाई। और कभी कभार क्या होता है, जो हमारा जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो भी हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उस फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो है, जो जैसे इसने प्रोडक्ट बनाया, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, ये एज कैटलिस्ट एक्ट करता है, और इस तरह से ये कैटलिस्ट जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन को या कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स को या नंबर ऑफ द मोल्स रिएक्टेड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड बढ़ जाता है। तीसरी चीज हो सकती है, तीसरा तो मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल का ही, एक और चीज हो सकती है कि समटाइम्स क्या होता है, जब ये एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाता है। ये जो हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये बाकी इनएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ, जो बाकी इनएक्टिव होते हैं उनके साथ कोलाइड करके इनको भी एक्टिवेट कराता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, दे also increase the rate of the reaction, या they also increase the number of reactants that are converted into the products. ये भी एक वजह हो सकती है। एक और वजह हो सकती है कि समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो हमारा रिएक्शन पहला स्टेप है उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये जो हमारी एनर्जी है ये एनर्जी भी एक्टिवेट कर सकती है मॉलिक्यूल्स को, एंड इट मे कन्वर्ट सो मैनी इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स टू द प्रोडक्ट्स, दस इंक्रीजिंग दिस क्वांटम यील्ड, ठीक है। सो एक तो हमारे पास ये आ गया कि फ्री रेडिकल बढ़ा सकता है, इस फ्री रेडिकल जो है पहले स्टेप में जो बन गया प्रोपेगेशन रिएक्शन, प्रोपेगेशन स्टेप में ये बाकी फ्री रेडिकल्स बनाता है, कन्वर्ट्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स। दूसरे में जो हमारा कभी कभार क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल होता है जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोडक्ट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। इन थर्ड केस जो हमारे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये बाकी डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये हेल्प कर लेता है, एंड समटाइम्स एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये जो एनर्जी हमारी होती है, this energy also increases the rate of the reaction, yeah, also increases the conversion number of reactant molecules converting into product molecules, तो जिसकी वजह से हमारा quantum yield बढ़ जाता है। So these may be the reasons why our quantum yield
why do we come across high quantum yield reactions. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन जो है इट इज लेट मी रबिट, मैं ये इसलिए करती हूँ कि शायद आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने होंगे, तो फॉर दैट रीजन एंड यू मस्ट, बिकॉज दिस ये जो मटेरियल है ये आपके काफी हेल्पफुल हो जाता है. तो ये यही चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है जो मैंने आपको बताया अभी, कि this reaction involves a chain initiation step where a free radical is formed that activates a large number of reactant molecules and converts them to products. This results in a number of product molecules being formed as a result of the absorption of a single photon, and thus increases the quantum yield. So for low quantum yield reactions, quantum efficiency is quite low. For every mole of the photons absorbed, a lesser number of moles of the reactant molecules react, or it takes absorption of a number of moles of photons to activate 1 mole of the reactant molecules. For example, H2 plus Br2 HBr. तो इसका जो हमारा क्वांटम यील्ड है ये 0.01 है, यानी कि छोटी सी बात ये है कि इन सच रिएक्शंस नॉट एवरी फोटोन एब्जॉर्ब्स लीड्स टू द रिएक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. इसको मैं आपको इस तरह से समझा दूंगी कि ये जो हमारा, जैसे हमारा इसी रिएक्शन को ले लेते हैं, ये Br2 है, इसने ये फोटोन एब्जॉर्ब किया एंड इसने दिया, ये बन गया इसमें फ्री रेडिकल. ठीक है, व्हाट हैपन्स टू दिस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ये जो हमारा फ्री रेडिकल है ये Br, इट समटाइम्स रिएक्ट्स विद द प्रोडक्ट, HBr प्रोडक्ट के साथ भी ये मिलता है, और इसको क्या करता है, इसको तोड़ देता है, डीएक्टिवेट करता है. ठीक है, इसको डीएक्टिवेट करता है, ये जो हमारे प्रोडक्ट है इसको तोड़ देता है, यानी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट चेंज इनटू प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट बन जाता है उस कंसंट्रेशन को ये कम कर देता है. तो उससे क्या होगा, जब ऐसा कुछ होगा कि नंबर ऑफ जो रेट ऑफ द रिएक्शन वो डिक्रीज हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा क्वांटम यील्ड भी कम हो जाएगा. ठीक है, सो ऐसी रिएक्शंस में क्या हो जाता है कि वी सी समटाइम्स जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें क्या हो जाता है कि जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में कहा था, इसमें जैसे हमारा ये जो था Cl, अगर जब इसने ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ था, ये फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट, एक तो प्रोडक्ट भी बन जाता था और दूसरा फ्री रेडिकल बनाता था. ये फ्री रेडिकल क्या है, एक तो प्रोडक्ट बन गया और फ्री रेडिकल बन गया. उससे जो हमारा रिएक्शन था ये दूसरे इसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा, इससे हमारा द कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट वुड इंक्रीज, तो क्वांटम यील्ड बढ़ जाएगा. जबकि इसमें क्या हो जाता है, इस वाले रिएक्शन में इसमें जो हमारा फ्री रेडिकल है ये प्रोडक्ट को ही रिवर्ट बैक करता है, इसको ही डिकम्पोज करता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्वांटम यील्ड जो है डिक्रीज हो जाता है. एक और चीज इस क्वांटम यील्ड के कम होने की वजह यह है कि जैसे इसने प्राइमरी प्रोसेस में एब्जॉर्ब किया होगा फोटोन को और ये एक्टिवेट हो गया, ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट्स के साथ मिल करके या बाकी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके उनको डीएक्टिवेट करवाता है. सो डीएक्टिवेशन करता है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग है वो कम हो जाते हैं और हमारा क्वांटम यील्ड जो है वो ड्रॉप हो जाता है. तो समटाइम्स प्रोडक्ट इसका जो है, द प्रोडक्ट इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, जो प्रोडक्ट है ये इनहिबिटर की तरह काम करता है एंड रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द क्वांटम यील्ड. ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात समझ ली कि जो हमारा क्वांटम यील्ड है, जो 1 फोटोन 1 मॉलिक्यूल रिएक्टिंग, ये इक्विवेलेंस नहीं होल्ड होती है, तो समटाइम्स इट इज द वैल्यू इज 1 2 3, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटीग्रल क्वांटम यील्ड रिएक्शंस, और समटाइम्स ये हाई क्वांटम यील्ड भी होती है, समटाइम्स लो क्वांटम यील्ड भी होती है. इनके रीजंस वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. ठीक है, तो
दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए चेन इनिबिशन स्टेप, ये दूसरी इस रिएक्शन के लिए लो क्वांटम यील्ड रिएक्शन के लिए, वेयर द प्रोडक्ट फॉर्म रिवर्ट्स बैक टू द रिएक्टेंट स्पीशीज, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की. दिस रिजल्ट्स इन अ नंबर ऑफ फोटॉन्स बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एंड दस डिक्रीजिंग द क्वांटम यील्ड. यही वजह है, दिस इज द रीजन व्हाई द क्वांटम यील्ड फॉर दिस रिएक्शन HBr जो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ HBr, इसमें हमारा क्वांटम यील्ड जो है दैट्स 10⁻² और 0.01. I hope ये आपको समझ आ गया होगा. If you really liked this lecture, do share and subscribe. Thank you so much.